अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम डिराइव करेंगे। देयर आर टू अप्रोचेस। एक अप्रोच है ग्राफिकल अप्रोच, लेकिन लास्ट टाइम ग्राफ से हम डिराइव कर सकते हैं। द सेकंड अप्रोच इज कैलकुलस अप्रोच, ठीक है ना। टुडे वी विल follow this velocity time graph approach, by which we will see how these equations of uniform accelerated motion can be derived. Okay, and then for that, first we will assume here that suppose an object is moving along a straight track. Okay, this is straight track, and now suppose here is the reference point from which, with respect to which we can state the motion of the object. O is the reference point, and suppose initially the object is somewhere here at point A and then finally reached at point B. This is the initial point, this is the final point. Okay, and now suppose initially the object is at a distance x naught from the origin. Okay, from the origin, from the reference point O. So this is called initial position. एंड उस वक्त जो टाइम है, टाइम t इक्वल टू 0। सपोज उस वक्त जो टाइम है दैट इज t इज 0, इनिशियल टाइम। t से सिंपली दिखाएंगे t इज 0। दिस इज द इनिशियल पोजीशन। जब हम इनिशियल पोजीशन लेते हैं, इनिशियल पोजीशन से हम जब स्टार्ट करते हैं, स्टडी करना है, मोशन को स्टडी करनी होती है, तो उस वक्त हम टाइम लेते हैं जनरली 0। सो इन दिस केस द इनिशियल पोजीशन इज नॉट 0, इट इज x नॉट। ओके, एंड नाउ सपोज इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, इनिशियल velocity and instant time t equal to 0. So यहाँ पे जो इसकी velocity है, यहाँ पे दिखाएंगे u है इसकी velocity, and this velocity moves is changing continuously. It is changing continuously, and it is increasing the velocity of the object as its acceleration is constant and or uniform. So it means that the velocity of the object increases by equal amounts in equal intervals of time, and then finally reaches here with the maximum velocity, the suppose v। तो यहाँ पे ले लेंगे पोजीशन जो इसकी है, सपोज इसकी पोजीशन है x, फाइनल पोजीशन at an instant of time t, at an instant of time यहाँ पे दिखाएंगे t है यहाँ पे टाइम, and v with the times t, and v with the final velocity, ठीक है। And now we will plot a graph for such a motion. यहाँ पे दिखाएंगे ग्राफ, जैसे पहले मैंने बता दिया, इससे पहले जो लेक्चर हमने दिया वहां पे देखा हमने कि इसका जो ग्राफ होता है इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। If the acceleration is uniform or constant, then velocity time ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होती है उस वक्त। Here is the origin O, this is time axis, and this is velocity axis. Okay, and here the initial velocity is u. It is not, initial velocity is not 0. It is starting with some initial velocity. Okay, and now यहाँ पे तो initial velocity है कुछ ना कुछ, तो graph starts from the velocity axis here. यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ से मान लीजिए is a straight line. अगर initial velocity 0 होती तो origin से ग्राफ प्लॉट होता, फिर origin से ग्राफ आता। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज u, तो ये ऑरिजिन से ग्राफ नहीं आएगा, यहां से आएगा। सो u इज इनिशियल वेलोसिटी। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू 0। एंड नाउ इस पॉइंट का नाम रखेंगे, सपोज दिस पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b। पॉइंट a is corresponding to initial position of the object, point b is corresponding to the final position of the object, and from point b we will drop a perpendicular here on the time axis, okay, and another perpendicular here from the same point on the velocity axis. Okay, therefore जो यहाँ से perpendicular हमने ड्रा किया, it cuts the time axis at a point। यहाँ पे इसका नाम रखेंगे, suppose m is the point। तो इस point m पे जो इस वक्त जो टाइम होगा वो होगा फाइनल टाइम t, ठीक है ना। सो t इज द फाइनल टाइम,
फाइनल टाइम जब ऑब्जेक्ट कहां पे था, एट पोजीशन बी, एट पॉइंट बी, ठीक है ना। ओके, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइम टी, यहाँ पे जो दूसरा पैरामीटर हमने ड्रा किया ये दिखाएगा वेलोसिटी पे उस वक्त कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या थी। सपोज v इज द फाइनल, यहाँ पे v इज द फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे v होगा। Is this clear to you? So v is the final velocity corresponding to time t, and use the initial velocity corresponding to time 0. Is this clear? And now from this point A, we will draw a perpendicular, या फिर ड्रा करें perpendicular on the BM. ये perpendicular हमने ड्रा कर दिया, this M here. Okay, इसका नाम रखेंगे C. Is this clear to you? And now the graph is a straight line graph जो है ना velocity time graph. It is inclined to time axis. Suppose theta is the angle. Is this clear to you? Okay. Theta is the angle. कौन सा angle between the velocity time graph and the time axis. इनके दरमियान जो graph है, it is theta. Okay. And now from the graph, अब इस ग्राफ में देखिए, this is a rectangle ACMO. It is a rectangle. In this rectangle, AC and OM are the opposite sides. The opposite sides in rectangle are equivalent parallel. Equivalent parallel होते हैं. Therefore, we can write जो AC है, AC is equal to OM. ठीक है? AC is equal to OM and O से लेकर M तक क्या है? ये है टाइम एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट, ठीक है ना। सो देयरफॉर OM रिप्रेजेंट्स व्हाट, टाइम t, टाइम इंटरवल t. इज दिस क्लियर टू यू? ये यहां से टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा, टाइम इंटरवल t. ओके, एंड नाउ इसी तरह से अब यहां पे देखेंगे जो MB है ये किसके बराबर होगा, इसका नाम रखेंगे आप ये n, इस परपेंडिकुलर का BN इज द परपेंडिकुलर हियर. सो MB is equal to OM. MB is equal to OM. Again, this is a rectangle. Opposite sides are equal. ठीक है ना? And parallel, वो equivalent parallel है. Therefore, MB is equal to ON. What is ON? ON is V. So MB represents the final velocity. And similarly, in this rectangle MC, इसी तरह से MC भी लिख सकते हैं. MC is equal to what? OA and represents what? The initial velocity, यहां से U. ठीक है, तो AC भी हमने देखा, MB and MC from the graph. Similarly इसी तरह से देखेंगे BC, therefore ये जो BC है ये किसके बराबर होगा? BC would be equal to what? MB minus MC. MB minus MC. Is this clear? तो फिर MB के लिए भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना. इट इज V एंड MC के लिए भी U. तो ये आएगा यहाँ पे V minus U. Is this clear? तो यहां से देखते हैं, ये तो बेस है, ये इसके बराबर है. अगर ये टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा T. Is this clear? ओके, अब देखेंगे यहां पे as you know that this is called, मैंने बता दिया the importance of the velocity time graph. अगर हम इसका स्लोप मेजर करेंगे, the slope gives what? Acceleration. Now यहां पे लिख सकते हैं, सिंस जो एक्सेलरेशन है of the object is given by acceleration is equal to what? It is equal to the slope of the velocity time graph. Velocity time graph. That is line AB का ग्राफ. तो AB जो A है एक्सेलरेशन, ये किसके बराबर होगी? इसका स्लोप. इसका स्लोप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टेंजेंट थीटा. सो A कैन बी रिटन एज व्हाट इज tan थीटा? Tan theta is perpendicular divided by base. Perpendicular divided by base. So what is perpendicular here? Perpendicular is BC.
What is base? Base is AC. Is this clear? Okay. इसको हम लिख सकते हैं, we can write it as A is equal to, what is BC here? BC is, we can write MB minus MC divided by AC. Is this clear? And now put for MB and MC, we can write it as, what is MB? MB is the final velocity. What is MC? MC is the initial velocity. And what is AC? AC represents time interval t. अब cross multiply करेंगे, what will you get? You will get V minus U equal to AT. And we can write V is equal to U plus AT. This is the first equation. And in this equation there are two variables. One is the velocity and second is the time. Acceleration is constant. Two variables are there. And therefore this relation is called velocity time. Velocity time equation or relation. This is called velocity time equation or relation. ठीक है ना? Of uniformly accelerated motion. Of uniformly accelerated motion. Is this clear to you? ये पहली इक्वेशन हमने डिराइव कर दी ग्राफिकली. Just measuring the slope of this velocity time graph. इसका स्लोप हमने यहाँ पे मेजर किया, वेलोसिटी इसका स्लोप देखा हमने, तो उसी स्लोप को हमने जब देखा कि सिंप्लीफाई किया, यहाँ से निकला है इक्वेशन from the slope. Is this clear to you? This is the first equation, and now we will derive the second equation. अब सेकंड इक्वेशन देखेंगे. अब सेकंड इक्वेशन होगी, वो हम देखेंगे. तो अगेन जो इसकी इंपॉर्टेंस है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की इंपॉर्टेंस, तो दूसरी इंपॉर्टेंस है, अगर इसका जो एरिया ये बाउंड करता है विद द टाइम एक्सिस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वो एरिया किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट. तो अनदर इंपॉर्टेंस इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस भी लिख सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के बराबर ही है. ठीक है ना? तो यहां पे डिस्टेंस के बदले, डिस्प्लेसमेंट के बदले हम डिस्टेंस भी लिख सकते हैं कभी भी. डिस्प्लेसमेंट covered by an object in given interval of time is given by the area bounded by the velocity time graph with the time axis in the given interval of time t. In the given interval of time t. ठीक है ना? इस टाइम के दरमियान, इस टाइम इंटरवल के दरमियान जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया बाउंड करेगा, इसके नीचे जो एरिया होगा विद द टाइम एक्सिस, ये एरिया सारा हमें मेजर करना है. ठीक है, जैसे कल मैंने बता दिया. तो वो एरिया किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट. एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट हियर वी विल रिप्रेजेंट इट बाय एस. यहाँ पे एरो इसके ऊपर रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज वन डायमेंशन मोशन. एस इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, एरिया of what? Of this four-sided figure, trapezium. So what is the area of the trapezium? Trapezium क्या है? O M B A is a trapezium. तो इसका एरिया किसके बराबर है? The area, इसका एरिया हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं. One, area of this rectangle plus area of this right triangle. दूसरा ये है, दो पोर्शन में अलग अलग. इस तरह भी लिख सकते हैं. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OMCA प्लस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ACB. ठीक है. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू perpendicular sides, two sides,
दैट इज एक साइड है ओ ए इंटू सेकेंड साइड इज ओ एम, ठीक है, प्लस अब एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज हाफ ऑफ base into altitude. What is base? Base is AC into altitude is CB. Is this clear to you? OA, as you know that OA is U, initial velocity, and OM is T. पहले हम ऐसे ही रखेंगे इसको, OA into OM plus 1/2. यहाँ पे AC भी टाइम के बराबर है, एंड सी बी यहां पे देती है हमें चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे हम जो AC है इसको ले आएंगे किसमें, या जो चेंज इन ये CBC है, या इस तरह से लिखेंगे इसको, कीप इट नंबर 1। एंड नाउ यहां पे देखते हैं, तो अगेन सिंस the slope है, as you know that acceleration of the object is equal to what? Slope of line AB line का slope है, जैसे हमें पहले से पता है। तो what is slope? Slope is tan theta, and tan theta is equal to BC divided by AC. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, what will you get? BC के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे A times AC. Is this clear to you? A is acceleration, AC is this distance. ठीक है, तो यही पुट करेंगे यहां पे, what will you get? You will get the displacement is equal to OA into OM plus half of AC इंटू AC इंटू CB किसके बराबर है? A टाइम्स AC, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे व्हाट इज OA किसके बराबर है? OA इज U प्लस OM इट इज T, UT बनेगा यहां पे, प्लस हाफ ऑफ व्हाट इज AC हियर, A से लेकर C तक इट इज T into A, what is AC, again it is into T, ठीक है ना। यहां पे पुट करेंगे, you can write it as UT plus half of T into T, 80 square बनेगा। So this is the second equation. In this equation there are two variables. One is the distance or the displacement, velocity is U here, it is constant, T is a variable, acceleration A is constant. There are two variables, time and displacement, and therefore this is called a displacement time relation. Yeah, we derived here. This is what we call displacement time relation or relation of uniform accelerated motion, because it has only two variables, that is displacement and time. U जो है it is initial velocity, change नहीं, initial velocity constant रहती है. A is acceleration, it is constant, therefore it contains two variables, displacement and the time, therefore it is called displacement time equation or displacement time relation of uniformly accelerated motion, of uniformly accelerated motion. Is this clear? Okay, this ये होगी second equation. अब इसके बाद third equation. अब थर्ड इक्वेशन हम डिराइव करेंगे ग्राफिकली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन जो इसका एरिया है, एरिया बाउंडेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द टाइम एक्सिस, वही ले लेंगे। वो किससे बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट एस या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ ट्रिपिज्म। कौन सा ट्रिपिज्म है ये? इसका नाम देंगे यहाँ पे, इट इज AOMB, ठीक है।
एंड एज यू नो दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर एक साथ इसके लिए अलग सी फॉर्मूला है वो डायरेक्ट हम यूज करेंगे. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स. टू पैरेलल साइड्स है AO एंड MB, OA प्लस MB और द टू पैरेलल साइड्स. इनको ऐड करेंगे यहाँ पे into perpendicular distance between them, that is AC, yeah, we can say OM. OM is the perpendicular distance between them. Okay, and now OA, as you know that it is equal to initial velocity, and MB, yeah, OM it is time, okay, and MB यहाँ से it is the final velocity. पर यहाँ पे जो रिलेशन हमें डिराइव करनी है, it is between the what we call OM is the time, it is between the velocity and displacement, जिसको हम कहते हैं displacement velocity relation. वो हम यहाँ पे टाइम को एलिमिनेट करना है. टाइम को कैसे एलिमिनेट करेंगे? केक इट नंबर 1 OM, ठीक है ना, या वो कैन से OM के बदले हम AC भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, बिकॉज opposite sides of a rectangle. Since जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? स्लोप ऑफ लाइन AB. लाइन AB का जो स्लोप है वही एक्सेलरेशन है, ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप. तो A के बदले हम A इज इक्वल टू स्लोप किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर, दैट इज BC डिवाइडेड बाय AC. ओके, यहां पे हमें AC को लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. तो AC यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो A यहां पे शिफ्ट करेंगे हम, दिस विल बिकम BC डिवाइडेड बाय A यूजिंग इन फर्स्ट. ये हम फर्स्ट में यूज करेंगे. देन यू कैन राइट एज S इज इक्वल टू 1/2 OA प्लस MB इंटू AC के बदले हम यहां पे लिखेंगे BC डिवाइड बाय A, ठीक है ना. तो देन इट विल बिकम 1/2 OA के बदले वैल्यू लिखेंगे. OA क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी. MB क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी. इनटू BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? BC इज द चेंज इन वेलोसिटी, V माइनस U डिवाइडेड बाय A is acceleration, and it can be written as S is equal to 1/2. यहां पे लिख सकते हैं it is V plus U लिख सकते हैं into V minus U divided by A. 1/2 this A plus B into A minus B, it can be written as V square minus U square. फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो आपको बताई है. A प्लस B इंटू A माइनस B किससे बराबर होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है. वही फॉर्मूला हमने यूज किया है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बिकम ट्वाइस AS इक्वल टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है. सो ऑल वी कैन राइट एज B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू AS, और वी कैन राइट एज B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS इज अनदर रिलेशन, ठीक है ना. अब इस रिलेशन में देखिए हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 2. एक है वेलोसिटी, ठीक है ना, एंड द सेकंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट इज वेरिएबल. Velocity change from initial velocity to final velocity, it is variable. Is this clear to you? Therefore this is called velocity displacement relation of uniformly accelerated motion. Is this clear to you? इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो रिलेशन है, इट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. तो हमने 3 रिलेशन डिराइव किया है. कौन कौन सी यहाँ पे लिखेंगे? ग्राफ के लिए हमने जो डिराइव किया है, वन इज द वेलोसिटी टाइम
रिलेशन वो क्या है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80. दिस इज द रिलेशन नंबर 1. इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. एंड द सेकंड रिलेशन इज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. इसको डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं. तो वो है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. इसमें दो वेरिएबल्स है, एक है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज टाइम टी. देयरफॉर इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन. जो थर्ड रिलेशन हम डिराइव किया है दैट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. ठीक है ना. वो क्या है, दैट इज जो हमने डिराइव किया है, वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज द रिलेशन. ओके, ये आज मैंने बता दिया. ये हमने यहाँ पे ग्राफिकली हमने इन रिलेशंस को डिराइव किया है. तो इंशाल्लाह अब यही रिलेशन हम कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे. वो नेक्स्ट लेक्चर में हम दिखाएंगे कैसे कैलकुलस मेथड से हम इनको डिराइव करते हैं. तब तक के लिए गुड बाय.